of continuity in the JEE syllabus. What the continuity play the roles. This is the part of 12th class syllabus exactly, and individual question continuity somehow only occurs. क्वेश्चन जो जेई मेन में या जेई एडवांस में कहीं भी अगर आ रहे हैं तो केवल क्वांटिटी के क्वेश्चन रेयर टू रेयरेस्ट आते हैं अनलेस और अनटिल की थ्योरम से या फिर उसके एप्लीकेशन से ना आए. तो यहाँ के जो जेई सिलेबस है, हालांकि क्वांटिटी चैप्टर में कुछ दम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है. क्वांटिटी की डेफिनेशन ये बस आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लें. दैट इज यू नो दिस इज लेट एक्स एक्सेस, राइट, एंड दिस व्हाट वी कॉल से लेट this is y-axis. So if we are drawing any graph, कोई भी function अगर इस तरह से draw कर रहे हैं, so if without raising the pencil if you draw the graph, then function is continuous throughout. And suppose if we have to draw the graph like this way here, and suppose we just mind the cursor, if we just raise this pencil to lift the pen or pencil to just take some another point for the neighborhood element which occur at any point, then the function is said to be discontinuous at x equal to a, or whatever the value is here. Let this be x equal to a. Let this what we call here x-axis. This what we say y-axis. This is the basic concept of this continuity. But we have to go for the deeper understanding of the continuity, how it is, how this continuity holds here. Right? So let's see what is the continuity. So first of all, we will go for continuity at a point and what the means of continuity. That is, let me write first topic heading डालेंगे. That is continuity. Continuity. यहाँ से नोट स्टार्ट करेंगे. बोर्ड पर जो लिखते हैं आपको बता चुके हैं कि ये अब लिख लिया करें. फिलहाल अभी बोर्ड भी शेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. Continuity at point. At continuity at a point. What is continuity at a point? तो देखें भाई, continuity at a point का मीनिंग क्या हुआ? Let's see. Let any function लिख लेंगे थोड़ा सा इसको. ये दिख रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स. कोई एक फंक्शन है, इज सेट टू बी, ये बेसिक है, ठीक. इसको भी मैं ग्राफ से भी दिखलाऊंगा. इज सेट टू बी कंटिन्यूअस at x equal to a. ठीक, कोई a पॉइंट ले लिया x एक्सिस में at x equal to a. if raised with ये डेफिनेशन में लिख लेंगे continuous motion with any chunk. Continuous motion without any chunk. Without any chunk. Without any chunk of pen, pencil, जो भी लिख रहे हैं. Without any chunk of pen from left, LHL वाला पार्ट है, left to right, मतलब left vicinity to right vicinity बोलना चाह रहा है. From left to right, right,
at x equal to a, at x equal to a, correct, at x equal to a। तो इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन आना जरूरी है भाई, सही का। व्हाट इज डेफिनेशन? फंक्शन f is continuous, function f is continuous, देखिए यही पूरा बेस है पूरी क्वांटिटी चैप्टर का। क्वांटिटी मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसकी डेफिनेशन जरूर क्लियर होनी चाहिए। अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a। क्वेश्चन भी यहीं से सब सॉल्व होगा। If the following three conditions are met, the following three conditions, तीन कंडीशन को ध्यान देना होगा। थ्री conditions are met, नंबर वन, पहला कंडीशन क्या होगा? नंबर वन कंडीशन क्या है? fx is defined at x equal to a, fx is defined at x equal to a। क्या मतलब इसका? मतलब दिस शुड बी x equal to a, जो पॉइंट है at x equal to a point, at x equal to a, कोई x equal to a point ले लिया, x equal to a, ये जो x equal to a point है इस जगह पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये दिस शुड बी द डोमेन ऑफ fx, ठीक। नंबर टू कंडीशन क्या है भाई? नंबर टू कंडीशन ये रहेगा कि limit should exist, limit डायरेक्ट लिख देते हैं, limit x tends to a, ठीक, fx, limit x tends to a, fx क्या हो? एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब कैसे करेगा उसको अभी हम लोग देखेंगे डिटेल। नंबर थ्री पॉइंट क्या है? नंबर थ्री पॉइंट देखेंगे, नंबर थ्री पॉइंट क्या है भाई कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया इतना ही सफिशिएंट नहीं है, लिमिट तो एग्जिस्ट करे ही, लिमिट x टेंड्स टू a, fx एग्जिस्ट करे ही, और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना अपनी, ये मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू a, fx एग्जिस्ट, एंड लिमिट x टेंड्स टू a, fx शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। ये तीन चीज का होना जरूरी है, क्लियर? ये तीन चीजों का होना मस्ट है, ये यहां से ठीक, ये तीन चीजों का होना मस्ट है। इतनी बात, यानी लिमिट x टेंड्स टू a, fx शुड एग्जिस्ट, ठीक। तो व्हाट इट मीन? इट मीन्स क्या? इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस एज, ये वाली बात तो बोल रहा हूं मैं, ये वाली बात, ये वाली बात, fx इज डिफाइंड एट x इक्वल टू a, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये जो fx ये जो लिखा हुआ है, ठीक, ये जो लिखा हुआ है आप देखें, लिमिट x टेंड्स टू a, fx इक्वल टू f ऑफ a, ये वाली बात जो लिखी जा रही है, इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि fx is set to be continuous at x equal to a if this is equal to this, यानी कि fx equal to limit x tends to a, fx equal to fa। तो इसके अंदर ही सारी बातें आ भी जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं,
like this. So we can write over here, right? Let me write here. Yes, we can say like this here. In other words, let me write. In other words, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ से होना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ. In other words, function fx, ये जो आप लोग डिफाइन कर रहे हो ऊपर फंक्शन यही वाला y इक्वल टू fx. Function fx is said to be continuous, said to be continuous at x equal to a, at x equal to a if limit x tends to a, वही वाली बात है, limit x tends to a fx, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ a. मतलब ये जब इक्वल रहेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से वन साइडेड लिमिट, इसको भी लिख ही ले. इन टर्म्स ऑफ अभी वन साइडेड लिमिट के लिए वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जब इंटरवल हम लोग देखेंगे, तो वन साइडेड लिमिट के लिए देखा जाए. इन टर्म्स ऑफ वन साइडेड लिमिट्स, fx is continuous at x equal to a, you know, if कब क्या होगा यहाँ पे, if मतलब यहाँ से if LHL इक्वल टू RHL हो जाए तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा. यानी कि LHL भी FA हो जाए और RHL भी FA हो जाए, तो इसको ऐसे बल्कि लिख देना बढ़िया रहेगा कि हम लोग ये LHL और RHL को तो थोड़ा शिफ्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देना है और ठीक है भाई. LHL इक्वल टू मतलब ये भी हो जाए, LHL इक्वल टू RHL आपका हो जाए, और ये दोनों ही क्या हो यहाँ पे लिख देते हैं तो दोनों का मतलब हो जाएगा ये FA के बराबर हो जाएगा, ये FA के इक्वल हो जाए, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? आई दैट इज, ये नोट कर लिया, नेक्स्ट बोर्ड पे ले लें, नेक्स्ट बोर्ड ले लें. रुकिए सर. ओके सर आप भी रहेंगे? हाँ कर दें लिख ले. I that is लिमिट x टेंड्स LHL को ही लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h है वो वाला लिमिट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस h. चाहो तो a माइनस h लिखने की जरूरत नहीं है, a माइनस ही लिख लेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू, ठीक है.
तो अब यहाँ पे एफ ए लिख दिया है, एफ ए हो गया, ठीक। और यहाँ पे आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ए प्लस, और ये हो गया आपका एफ एक्स हो गया, ठीक। ये एफ एक्स हो गया, आई दैट इज एक लिख दे रहा, आई दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसको अप्लाई कभी करना है, या अगले स्टेप में लिखना था, तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको लिख सकता है एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट सॉल्व कैसे करता है भाई, एल एच एल, ये एल एच एल वाला बात हो गया आपका, ठीक है। और ये अब आर एच एल, ये कल तो ये एफ ऑफ ए के इक्वल हो गया, और ये यहाँ पे लिमिट, ठीक है, एच टेंड्स टू 0, ये चीज़ वैल्यू रख दो आप, जो है एफ ऑफ, यही ए 0 नहीं है, ये ए है, ध्यान रखना, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक, लाइक दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर है, इस बात को समझना है, ठीक। तो अब कॉन्टिन्यूटी को डिटेल समझने के लिए हम लोगों को डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी आना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट हियर, व्हाट्स द कॉन्टिन्यूटी ओवर दैट। लो सर, नेक्स्ट पेज। Okay, fine. So let's see. So अब हम लोग को कॉन्टिन्यूटी से अगर डिफरेंसेस देखना है, तो कॉन्टिन्यूटी तो ये वाला पॉइंट तो कॉन्टिन्यूस वाली पॉइंट हो गई, ठीक है। अब अगर इसको अगर हमें लोग को देखना है, तो अब डिसकंटिन्यूटी के पास आना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी अगर नहीं है तो वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूस बोला जाएगा। तो ऐसे में हेडिंग डालेंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो न्यू टॉपिक नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स discontinuity, points of discontinuity, okay. So what are the points of discontinuity? Let's see. If a function fx is continuous, right? Continuous at x equal to a, at x equal to a, right? Then the point a, then the point small a, ये वाला जो है, ठीक, is called the point of continuity, इसका नाम रहेगा the point of continuity, point of continuity of the function fx, means fx is continuous at x equal to a, then the point a is called the point of continuity of the function fx. Okay. Otherwise, when the limit of the function fx at point a does not exist, or exist but is not equal to f of a, is called the function discontinuous at point x equal to a. लिख दूं मैं इसको भी, fx, चलिए लिख ही देता हूँ, एक ही बार लिखना है। Otherwise, ठीक, when the discontinuous के लिए, when the
otherwise when the limit of the function fx at the point fx of the fx at the point A does not point A and the point at the point A at the point A ये दिख रहा है क्या लग रहा है at the point A ठीक है भाई does otherwise when the limit of the function fx at the point A does not exist doesn't exist does not exist or exist एक तो exist नहीं करे और exist अभी इस सब में ग्राफ से दिखाऊंगा आपको ये चीजें और exists but is not equal to but is not equal to f of a is not equal to f of a. Take the function is said to be ये f of a है भाई ठीक ये देखो इसको f of a जीरो ना समझ लेंगे वैसे जीरो में कहीं यूज कर भी नहीं रहा हूँ तो फंक्शन is said to be theory दर्ज हो रहा है said to be discontinuous at the point x x equal to a तो इसी को डिसकंटिन्यूअस कर देना फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a ठीक है कब जब तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो और एग्जिस्ट हो बट वो इक्वल ना हो एफ ए के इक्वल ना हो ये जो बात यहाँ पे लिखी गई है ये या तो ये दोनों इक्वल ना हो मतलब LHL RHL एग्जिस्ट कर जाए इसमें से लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जा रही है लेकिन ये एफ ए के इक्वल नहीं है तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा मतलब इन तीनों में से कोई एक भी जो है रूल फेल कर रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड का होना जरूरी है कंटिन्यूअस बनने के लिए तो इसमें से तीनों में से जैसे ये हो रहा है ये सेकंड हो रहा है लेकिन थर्ड नहीं हो रहा है ठीक है तो थर्ड में LHL ये तो ऐसा होगा नहीं कि थर्ड हो जाए और सेकंड ना हो तो इसलिए ये वाली बात को जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लिखे हैं यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है कि थर्ड अगर हो गया तो सेकंड ना हो ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि थर्ड जब हो रहा है तो सेकंड तो होगा ही लेकिन सेकंड होकर के थर्ड नहीं हो सकता है तो इसलिए ऐसी बात लिखी जा रही है ठीक तो ये जो तीनों चीजें डज नॉट एग्जिस्ट हो एक तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो और एग्जिस्ट हो गया बट नॉट इक्वल है तब जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोला रहेगा ठीक है तो डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू a ये ठीक है भाई तो इसी को कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ठीक यही वाली चीज डिसकंटिन्यूटी मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफाइन कर रहे हैं ना तो इसको लिख सकते हैं ये जो लास्ट वाला ये बाद वाला जो है इसको ऐसे लिख दो ना द लेटर मीन द लेटर ये बाद वाला जो
the letter B called the discontinuity of the point of discontinuity of function. Point of discontinuity. Discontinuity of fx function applicable. Discontinuity of function fx. ठीक, तो ये क्या मतलब, अब जरा सा कुछ ग्राफ के थ्रू इन लोगों को देखा जाए। तो ये नोट कर लिया सब लोग, इसको हटाएं। तो चलिए यहाँ से वेट सर वेट हाँ 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 wait करो। तो एक ये पहले फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट पार्ट। पहला क्या है, अब देखो फर्स्ट बनाए। चलिए इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये लेट जस्ट बी एक्स एक्सिस एंड दिस व्हाट वी कॉल ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक, सो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस व्हाट वी कॉल वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक ऐसा बनाएंगे ग्राफ, एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग लाइक दिस। ठीक, और यहाँ पर डॉट और फिर यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, एंड लाइक दिस, क्लियर। और ये वाली जो लाइन रहेगी डबल कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए। दिख रहा है एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आ रहा है वो एक्स इक्वल टू ए। लेट दिस पॉइंट बी एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू ए। ठीक, क्लियर। अब इस एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर ये हो क्या रहा है, तो एफ एक्स इज डिफाइंड, यहाँ पर बात में थोड़ा लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, एफ एक्स इज, लेट मी थोड़ा एफ एक्स इज डिफाइंड, ये देखो ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है। रीजन क्या है डिस्कंटिन्यूटी का, ये हम लोग देख रहे हैं। तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि एक बार जब डिस्कंटिन्यूटी समझ में आ गया तो फिर क्वांटिटी अपने आप समझ में आएगी। तो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एवरी वैल्यू ऑफ एक्स भी ले सकते हैं फॉर ऑल पॉइंट्स, डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट्स, all points of the interval of the
fx is defined for all points of the interval ये फर्स्ट ग्राफ के लिए interval a minus delta a plus delta कोने का डेल्टा है ये, ठीक है। ये इस इंटरवल में a के लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट a equal to a, except for the point a, except for the point a को छोड़ करके, ठीक। then x equal to say x equal to a, मतलब a को छोड़ करके हर जगह फंक्शन डिफाइंड है भाई, लेफ्ट साइड में भी देखे और राइट साइड में भी देखे, तो फंक्शन थ्रू आउट डिफाइंड है। ये इस तरह से ग्राफ सर ए पर भी डिफाइंड है ना सर? है क्या? ए पर भी डिफाइंड है ना? ए पर भी फंक्शन डिफाइंड है, ए पर वैल्यू आ रही है सर? ए पर तो फंक्शन आ रही है वैल्यू, हाँ यहाँ पर फंक्शन की तो वैल्यू डिफाइन होगा ना? हाँ, ए पर फंक्शन ए के राइट साइड से फंक्शन डिफाइंड है, ए पर, हाँ ठीक है, ए पर भी डिफाइंड है ना सर? ए पर तो फंक्शन डिफाइंड है, क्या लिखा है? fx is आपने नहीं, fx is defined for all points of the interval a minus delta and a except for the point x equal to a, a पर not defined रहेगा ये, मतलब एक केस ये भी बनाएंगे, अभी कई केस बनेगा, तो एक केस उसमें सर्कल लगा, ये वाला इस वाले में तो डिफाइंड हो जाएगा, एक्सेप्ट ये इसमें मतलब राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ये लिख दिए हैं, या तो ये ग्राफ चेंज करें या ये चेंज करें, क्या चेंज करें, चलो इसको चेंज करते हैं, ये ग्राफ ही चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ आप लोग चेंज कर दीजिए, और ये चूँकि लिख दिए तो पहला केस इस तरह से बना देना पड़ेगा, सही करें, ये होगा, ठीक, ये तो x इक्वल टू a पर फंक्शन अभी नहीं नॉट डिफाइंड हो रहा है, ठीक है भाई, a माइनस डेल्टा पर डिफाइंड हो रहा है और a प्लस डेल्टा पर डिफाइंड हो रहा है, और x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, क्लियर? हाँ बराबर। देन x इक्वल टू a, तो इस केस में क्या होगा? देन x इक्वल टू a क्वांटिटी हो रहेगा ना, then x equal to a is also a point of this quantity, also a point of this quantity, this quantity, पहला तो ये क्लियर है? चलिए ठीक है, दिस क्वांटिटी ऑफ fx फंक्शन वही, ये कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है, क्लियर? तो ये देखो यहाँ पर मतलब a प्लस डेल्टा, a प्लस माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा पे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, और a पर ही नहीं वैल्यू ले रहा है। अच्छा, अब x इक्वल टू a पर ये नोट कर लिया, नेक्स्ट ले पेज, नेक्स्ट पेज ले, सर 1 मिनट सर 1 मिनट हाँ हाँ, सेकेंड एक ग्राफ बनाएंगे,
ले लो सर आगे। चलो, तो एक ये हम लोग बना लेंगे अभी। ये तो ये केस हो गया। एक केस ये बनाएंगे, केस 2। नंबर 2 ये वाला, ये क्या था? फर्स्ट था ना आपका, ये सेकंड बनाएंगे। नंबर 2 का अगर आप बनाए से एक ग्राफ, ये एक्स एक्सिस आ गई। What we call this is x-axis and this one we call एक ये y-axis मान लें, ठीक है? इसको x-axis बोलना है, इसको y-axis बोलना है, ठीक? फिर से एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे लाइक दिस वे, यहाँ पे एक सर्कल कर देंगे और यहाँ पे ग्राफ गोज लाइक दिस वे। ये कोई फंक्शन नहीं है, और यहाँ पे फिर equal to a. x इक्वल टू a पॉइंट। अब यहां पर x इक्वल टू a क्या है? देखो डोमेन में ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है इसकी, ठीक है? द फंक्शन यहां पे लिखेंगे, द फंक्शन fails, the function fails to have function fails to be the point fail कर गया ना, उल्टा हो गया। फंक्शन फेल्स नहीं होगा, मतलब फंक्शन क्वांटिटी में फेल हुई ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू a वाला पॉइंट फेल कर गया, ठीक है? द फंक्शन क्या लिखेंगे? द फंक्शन फेल्स, ठीक है? द फंक्शन फेल्स फेल्स टू हैव, चलो टू हैव, ठीक है, लिख रही लिमिट, द फंक्शन फेल्स टू हैव अ लिमिट, ऐसे लिखते हैं, लिमिट एट द गिवन पॉइंट, एट तो हो जाएगा ना, लिमिट एट द गिवन पॉइंट, करेक्ट? ये हो गया। अब एक ऐसा भी केस बन सकता है, ये समझ में आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नंबर 3 केस ले लेंगे, नंबर 3 केस सबसे लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और देखो फिर से एक और ग्राफ बनाते हैं, लेट दिस बी एक्स एक्सिस एंड दिस व्हाट वी कॉल वाई एक्सिस, एक वाई एक्सिस बना लो, let this be x-axis, this what we call y-axis। अब देखो एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे,
इस बार क्या हो रहा है कि फिर से ये इस तरह से बन गया और ये इस तरह से बन गया, ठीक, ये ऐसे बना, ये होल या ऐसे बना देंगे, ठीक है, एक सर्किल बना देंगे और इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे होल, और इस होल के ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे, जैसे ऐसे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, द फंक्शन एफ डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे, और स्टिल ये वाला पार्ट जो है जो मिल रहा है x इक्वल टू a, यहाँ पे x इक्वल टू a, फिर से पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, और इस बार a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अटेन कर रही है, ठीक, तो इस तरह का ग्राफ है। तो इस वाला ये वाला कौन सा केस हुआ, ये वाला देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये लास्ट वाला जो रिजल्ट है, लास्ट वाला रिजल्ट ये फेलियर कर रहा है, ये एफ ए के इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो ये रिजल्ट फेल कर रहा है इस बार, यानी कि क्या इसको लिखा गया, द लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट 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 एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन is unequal to the, ये फंक्शनल वैल्यू के, ठीक है, ये फंक्शनल वैल्यू के अनइक्वल आ रही है, ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये एफ ऑफ ए, ये कोई आ रही है एफ ऑफ ए की वैल्यू के अनइक्वल हो रही है, ठीक, ये वाली वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर है और एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे, दोनों मैच नहीं कर रही है, तो लिमिट की वैल्यू, ये तो जो है जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, लिमिट दैट इज एल, ठीक, तो लेट एल बी द लिमिटिंग वैल्यू, तो द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज अनइक्वल टू द functions value, functions value at the given point, at the given point, correct? सर हाँ बोले, तो सेकेंड वाले केस में सर फंक्शन फेल टू हैव अ लिमिट एट द गिवन पॉइंट, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना x इज इक्वल टू a पर, function fails to have a limit at a given point, यहाँ पे तो वैल्यू आ रही है ना, ये क्या है, इसका क्या हुआ, फंक्शनल वैल्यू नहीं इसका ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, fx is defined for all x in the interval except for the point of x equal to, then x equal to a is the point of the square of fx, ये तो सही है, ये बराबर है, ये एक मिनट चेक कर दे, सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है, द फंक्शन फेल्स टू हैव अ लिमिट एट अ गिवन पॉइंट, द फंक्शन फेल्स, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, द फंक्शन फेल्स टू हैव अ, नहीं इसका फंक्शनल ये डोमेन में ही नहीं है, ये तो एफ ऑफ ए डोमेन ही नहीं ना हुआ, एफ ऑफ ए सर वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, फिर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन एफ ए नहीं होगा, तो ये क्या है, द फंक्शन फेल्स, क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन फेल्स टू हैव अ लिमिट एट द गिवन पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये बल्कि गलत हो गया, ये स्टेटमेंट ही पूरा गलत हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा था वो एट एक्स इक्वल टू पॉइंट पे, पॉइंट इज नॉट द पॉइंट, ही फेल कर गया डोमेन के लिए, ये होना चाहिए इसके लिए, तो पहले मैं इसको हटा रहा था, इसको चेक कर लेंगे आप लोग, ये स्टेटमेंट पूरा ही गलत है, ठीक है,
दिस पॉइंट फेलियर्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, पॉइंट ही फेल कर रहा है डोमेन के लिए। ये तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है भाई, लिमिट तो ये वैल्यू एल आएगी, लिमिट आप देखें तो ये वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू एल आ ही रही है यहाँ पे, ये लिमिटिंग वैल्यू ये तो एल आ रही है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू एल आ रही है लेकिन फंक्शन एफ ए ही नहीं है, तो ये लिखना चाहिए कि इसको ऐसे लिखें, इसको लिखें कि x इक्वल टू ए, x equal to a is not the part of domain, is not part of domain of f, domain of f of a given function, of a, ये लिखते हैं, इसको करेक्शन कर ले, of a given function, of a given function as limit exist, as limit exist, exist ये वाली a लिमिटिंग वैल्यू है, as limit exist ब्रैकेट में l limiting value, l is the limiting value, as limit exist बस, और its limiting value is l। तो यहाँ पर इन तीन रीजन में से कौन सा रीजन होगा इसका, ये fx is defined at x equal to a, ये वाली चीज फेल करेगी, पहला वाला ही फेल करेगा। fx is defined at x equal to a means x equal to a पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, x equal to a पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, मीन्स फर्स्ट वाला फेल करेगा। अब पहला वाला, इसमें पहला वाला फेल करेगा और इसमें भी पहला ही फेल करेगा, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, x equal to a इसमें भी एक तरह से डोमेन में नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभी टोटल भी कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज अनइक्वल टू द, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पर एल एच एल और आर एच एल, यहाँ पे बल्कि ऐसे लिख सकते हैं इस केस में, फर्स्ट केस में आप लिख लें, फर्स्ट केस में एल एच एल, अच्छा यहाँ भी जो है एल एच एल और आर एच एल देखें एग्जिस्ट कर रही है, नहीं एल एच एल भी एग्जिस्ट कर रही है और आर एच एल भी एग्जिस्ट कर रही है, और एफ ऑफ ए यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ भी आप देखें तो ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो LHL एंड RHL आर डिफरेंट, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फर्स्ट केस बन गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक। और अगर वो वाली बात जैसे ये बनाए थे ना, डॉट बना रहे तो भी वो LHL एग्जिस्ट करेगी, एंड LHL इज नॉट इक्वल टू RHL ऑल्दो बोथ द लिमिट्स एग्जिस्ट, ऑल्दो बोथ लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्दो both sided limit, both sided limit exist, ये लिखेंगे, ठीक, ये हो गया। अब ये वाला हुआ x equal to a is not the part of domain of f of a given function as limit exist and is equal to l, yet function is discontinuous, yet fx is discontinuous, continuous at x equal to a। अब रहा सवाल इसका, यहाँ पे LHL equal to RHL, the limit of function is unequal to the function, बस हो गया। ये इसका थर्ड वाले का क्या रीजन है, थर्ड वाले का ये तीसरा वाला नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और ये वाला अब हम लोग को एक एग्जाम्पल लेना चाहिए ना सेकंड के लिए, सेकंड फेलियर कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो सेकंड में वही पहला एग्जाम्पल ही हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसे, ठीक। तो चलिए एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, ऐसी बात है तो आप ही लोग बताओ अब इसमें क्या होगा, ये ऐसा वही अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक और चलो बना लेते हैं, फोर्थ केस ले लेते हैं और देखते हैं बनता है क्या। फोर्थ केस ले लेते हैं, फोर्थ केस में देख लें, let this be x-axis and this what we call once again that is y-axis, ठीक।
let's say here x-axis, this what we call y-axis. Okay. So अब एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह का, डिस्पाइट ऑफ दिस वन फर्स्ट ग्राफ इसमें डॉट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एग्जिस्ट कर जाएगा, इसको एग्जिस्ट करा दें, ठीक। यहाँ पे डॉट ले लिया और यहाँ पर इस तरह का ले लिया डॉट, ठीक। और यहाँ पे दिस पार्ट ये चीज़ है, ये इसी के पास में आएगा, ठीक। और ये जो आपका रहेगा x=a, ठीक। तो यहाँ पर देखो LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही है और f ऑफ a की वैल्यू के इक्वल है, मीन्स LHL, इफ यू से LHL, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, LHL इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू ले लें L1, LHL इक्वल टू L1 और RHL ले लेते हैं, दैट इज L2, ये वाली पार्ट को L2 ले लेते हैं। ये दोनों LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट वंस अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, और LHL की वैल्यू पे FA फिर भी डिफाइंड है, FA डिफाइंड है, यानी ये फर्स्ट केस हो गया, FA आपका डिफाइंड हो गया और LHL RHL नॉट डिफाइंड हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, लिमिट एग्जिस्ट ये वाला फेल कर गया। इन तीनों में से कोई एक फेल करेगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही वाली बात हम लोगों को पूछनी है, कौन से सिचुएशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए एक दो ग्राफ और मैं बना के दिखला देता हूँ आपको, और ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो चलिए बस ये हो गया फिलहाल, और एक और ग्राफ में बना करके आप लोग की टेस्टिंग कर लेता हूँ कि क्या समझ रहे हैं, कौन से केस में आएगा, कौन सा केस फेल करेगा, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो एक आप लोग ग्राफ बना के देख लो भाई, इसके रे में केस में आ रहा है। तो लेट्स से दिस इज पिछले स्लाइड में तो एक है क्या ये, पहले का स्लाइड लो, हाँ ये ना, इससे पहले यही करिए। क्या इससे पहले तो ये था, यही चल रहा था भाई, हो गया सर। अभी चले यहाँ पे देखें, ये मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, लेट दिस बी एक्स एक्सिस, ठीक, एंड दिस व्हाट वी कॉल ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस व्हाट वी कॉल वाई। अब चलिए ये आप लोग बनाएंगे कि किस सिचुएशन में होगा, जरा समझ करके पहले ग्राफ बना लें सभी लोग। ग्राफ एक बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे बना दिया और एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल बना दिया, अभी रुकिए, एक सर्कल बना लिया, ठीक। और फिर ग्राफ इसको नीचे ले लिया लाइक दिस, और फिर यहाँ पे x = a ले लिया, x = a ले लिया, x = a ले लिया, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ भी ले लिया लाइक दिस, वैल्यू ले लिया, लेट्स से दिस इज l। अब बताइए यहाँ पे x = a पर पॉइंट तो डिसकंटिन्यूअस सही है, तो ये अब इसका रीजन क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूटी का,
इसका डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या हो रहा है? function not defined. हैं? A is not in the domain of the function. हाँ, ये यही वाला केस हो गया, ये यही वाला केस हो गया, ठीक है, यही वाला केस हो गया, बस ऐसे घूम गया फंक्शन। और एक्सेप्ट ए एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज थ्रू आउट कंटिन्यूस, इट्स ओके। तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी का ही पार्ट होगी। चलिए इसको देखिए, एक और ग्राफ बनाते हैं। अब फाइनल ग्राफ जो जिसमें कि फंक्शन की क्वांटिटी एग्जिस्ट करानी है, तो वो मैं दिखला देता हूँ। एक और भी ग्राफ बनाओ, लेट्स सी। फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज व्हाट वी कॉल x axis and this what we call y axis. Okay, so let's say y axis. अब देखें, इसको लिख देते हैं x axis, ये y axis। और अब ये ग्राफ कुछ इस तरह से चला गया। पॉइंट जो हो रहा है वो कौन सा हो गया, वो देखें once again, that is x equal to a। ये पॉइंट है x equal to a पॉइंट मिल गया, ठीक, स्प्रेड कर देते हैं। फिर जो है आप देखें यहाँ पर x equal to a, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, फंक्शन x equal to a पर, x equal to a पर अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, क्या ये डिसकंटिन्यूटी है? तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू इसकी आ रही है L इक्वल टू एफ ऑफ ए, L इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही टोटल पूरा कंटिन्यूटी है। तो पूरा कंटिन्यूटी को कंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे कि जितने भी आप इससे पहले आप देख रहे हैं ये वाले रिजल्ट में 1 2 3 4 किसी में भी 1 में 2 में, 1 ग्राफ में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जो भी ये ग्राफ देख रहे हैं, 6 ग्राफ को छोड़ दिया जाए, लास्ट वाला ग्राफ छोड़ दिया जाए, तो सभी में फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। अब डिसकंटिन्यूअस किन किन वजह से हो रहा है ये हम लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये चीज़ पकड़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी की वजह क्या क्या है, तो इस बात को भी लिख लेंगे। लेट मी राइट हियर। Thus, f can be discontinuous, discontinuous, continuous, discontinuous due to any of the फॉलोइंग, वो जो कॉन्टिन्यूटी थे उसी का अपोजिट फॉलोइंग। कितने रीजंस होंगे, 3 रीजंस। सभी ग्राफ में अगर आप देखें तो 3 रीजंस ही केवल मैटर करेंगे, 3 रीजंस डिसकंटिन्यूटी के। नंबर 1 पहला क्या हो सकता है, कंक्लूड कर रहे हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, समझ रहे हैं, fx क्या हो जाए, limit x tends to a, fx does not exist, dne मतलब does not exist। सेकेंड थिंग ये हो सकता है कि भाई अच्छा does not exist को मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, does not exist कैसे होता है, यानी कि LHL जो पढ़े हम लोग, वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे, LHL RHL अब एग्जिस्ट करे ना करे, अगर करे भी तो दोनों इक्वल ना हो, ठीक है। तो कौन कौन सा है इसमें, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अभी देखा जाएगा कौन सा ग्राफ इसमें फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a, fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू
ए, पहला एक रीजन होगा, सॉरी दूसरा रीजन होगा। और थर्ड रीजन क्या होगा, थर्ड रीजन क्या होगा, ठीक है भाई, थर्ड रीजन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वही वाला जहाँ पे ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ए को फेलियर करे, ये चीज़ फेलियर करे, तो ये मतलब ये नॉट इक्वल टू हो जाए। तो इन तीन रीजन से, इन तीन रीजन को होने पे कॉन्टिन्यूटी होता, इन्हीं तीन रीजंस का अगर फेलियर कर रहा है तो वही तीन रीजन ही जो है डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। मतलब बात घुमा करके वही वाली बात बोली जा रही है। इसको लेकिन समझना पड़ेगा हम लोगों को कि पहले रीजन में कौन कौन से ग्राफ आ रहे हैं ये बताइए, जहाँ की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो देखो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भाई, यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 6th ग्राफ में भी कर रही है। वापस चलते हैं, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 4th ग्राफ में, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस कर रही है, यहाँ भी कर रही है। तो फर्स्ट और 4th ग्राफ केवल बस आपके सामने है, जो कि फर्स्ट ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ है और यहाँ पे देखें 4th ग्राफ है, तो ये रीजन है। तो इसके आगे हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट और 4th ग्राफ, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे इस रिजल्ट में, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट एंड 4th ग्राफ, फर्स्ट एंड 4th ग्राफ, फर्स्ट एंड 4th ग्राफ, ये वाला जो है अपना 5th नंबर होगा और ये वाला जो है 6th नंबर होगा, ठीक। तो चलो फर्स्ट और 4th ग्राफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से ग्राफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, कौन कौन से ग्राफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोलो भाई। 5th ए, हाँ, सेकंड वाला पार्टिसिपेट कर रहा है और सेकंड और 5th, हाँ सेकंड थर्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा है, थर्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं थर्ड पे डिफाइंड है, थर्ड डिफाइन कर रहा है, यस। तो सेकंड पार्टिसिपेट कर रहा है और फर्स्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्ट हाँ सर पार्टिसिपेट, फर्स्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्ट इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर यहाँ पर सपोज ये वाला पॉइंट अगर ये डाल दिए होते ऐसे, तो फर्स्ट पार्टिसिपेट नहीं करता इधर इस वाले में, ठीक है, क्योंकि एफ ए डिफाइंड हो जाता है यहाँ पे। तो वो मैं वही बनाना चाह रहा था। तो नेक्स्ट एक और ग्राफ बना सकते हैं चलो हम लोग। तो फिलहाल इसमें ये फर्स्ट पार्टिसिपेट कर रहा है जहाँ पे एफ ए नॉट डिफाइंड है, सेकंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, तो कोई डिफाइंड हो गया है। तो फाइनली सेकंड और 5th, हाँ फर्स्ट सेकंड मैं लिख रहा हूँ एंड 5th, फर्स्ट सेकंड एंड 5th, ये दोनों ग्राफ डिफाइंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ए के इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भाई, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं है, तो ये वाली पार्टिसिपेटिंग इसमें नहीं होगी। कौन सा ऐसा ग्राफ है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ए के इक्वल नहीं है, एफ ए, ये थर्ड ग्राफ, ओनली थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ इज पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पर जो है थर्ड ग्राफ पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई सबको। तो ये क्वांटिटी और डिस्क्वांटिटी का तो पूरा नटशेल में हम लोग कंक्लूजन क्या किए इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो ये तीन पार्ट जो है क्वांटिटी है और इन तीन में से कोई एक ये कि अ फंक्शन एफ एक्स एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। पहला पार्ट ये वाला पहला पार्ट जो है क्या होना चाहिए, इफ एफ इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, राइट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, ये सेकंड पार्ट अभी आपके सामने आ रहा है। अब ये एग्जिस्टेंस कैसे करेगा इस बात को देखेंगे, which can only be true when, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, ये वाली वैल्यू आ रही है, अब ये दोनों मिलेगा, इधर वाले पार्ट को नहीं देखें, जहां पे देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एग्जिस्ट एंड, और ये दोनों ही इक्वल होना चाहिए, ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों को इक्वल भी होना चाहिए। तो देखो ये एलएचएल वाला पार्ट है और यहाँ पे आरएचएल वाला पार्ट और ये एफ ऑफ ए। तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होना किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड, नॉट ओनली दिस मच, लेट्स सी व्हाट अबाउट हियर, ये दोनों आपस में आ जाए यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ये वाली बात बता रहा है। ये दोनों देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ठीक, ये वाली बात देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस
देखो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है भाई, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कौन? लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस a प्लस, फिर इसके आगे देखें, एंड फाइनली लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ एक्स एफ ए के बराबर होना चाहिए। तो देखो ये वाली चीज देखो ऊपर से नीचे आ रही है, ये देखो ये होल में गिरी, ठीक है, एंड हेंस वी से f is now continuous and we say fx is now continuous at x equal to a. Are you all getting? Once again you can see this much only we have discussed right now. अभी तक हम लोग केवल बस यही बात पढ़े हैं, समझ में आ रही बात? बस एक बार देखो, केवल इतनी बातें होनी चाहिए, तीन, और इन तीनों में से कोई फेलियरनेस हो रही है तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी दिखलाई जाएगी। और अब डिसकंटिन्यूटी वाली बात जो हम लोग पढ़े हैं, दूसरी बात, उस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेट्स दिख रहा है सर? हाँ, अब x इक्वल टू a पर आप ये क्या देख रहे हैं? x इक्वल टू a पे a का जो राइट लिमिट है वो किधर भाग रहा है? प्लस इन्फिनिटी पर। a का जो लेफ्ट लिमिट है वो किधर भाग रहा है? माइनस इन्फिनिटी। तो LHL और RHL ये दोनों क्या हो रही है? इक्वल नहीं है। इसलिए इस पॉइंट पर x इक्वल टू a जो पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किया है, वहां फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यूड। तो इसके डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है? ये जो डिसकंटिन्यूटी वाली बात तीनों पढ़े हैं, ग्राफ से मैं ये दिखला रहा हूँ, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है? ये लिमिट आप इधर किधर भी घुमा दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड, ये LHL FA के बराबर हो गया है और RHL यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर, व्हाट इट मीन, अब यहाँ देखो दिख रहा है। तो यहां पर RHL और LHL फिर इक्वल नहीं है। इस तरह का भी ग्राफ हम लोग बनाए। ए पर पॉइंट पर जो FA पॉइंट है, ये ड्रॉप अभी जस्ट इक्वल नहीं हुआ है, लास्ट वाला जो फेलियर कर रहा है। फर्स्ट वाला बताए थे LHL RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सेकेंड वाला बताया, और ये थर्ड वाला जो लास्ट रीजन है FA के इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस। आप यहाँ देखें, ये कैसे भी आप अलग अलग तरह के लीनियर कोई फंक्शन हमने ले लिया है, तो इस तरह का आप देख सकते हैं, ये कहीं भी ये पॉइंट नहीं है। अब अगर ये पॉइंट आकर के इसमें बैठ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस होने के लिए तैयार